the world-renowned Dr. Jitendra Adia, the mind trainer, which is there is no introduction required for him, is with us today. અને આપણી સાથે છે. આપણે જસ્ટ એમની જોડે લાઈવ જઈ રહ્યા છીએ. નમસ્કાર સાહેબ. I think videosમાં થોડા audios, there were some audio issues, but I hope people can listen to me now. Okay. Okay, can you hear me now? Yeah, I can hear you now. During introduction, Correct. Okay, you can hear me now. So let's just start it over, Saib. થોડું શરૂઆત કરીએ આપણે, and I'll hand it over to you. So welcome. We have audience from all the way from Australia. Across the Australia, we have different cities joined us. Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth, Northern Territory, Alice Springs. અમારી સાથે આપણી સાથે ઘણા બધા viewers. We are live on Facebook and YouTube at the same time. So we have viewers from UAE, across the borders. And આપણે ઇન્ડિયામાં પણ ઘણા બધા viewers આપણા are all gone live today. I just wanted to start this with the thankful for a lot of, obviously you, sir, Dr. Jitendra Adia, but three of the people who has really helped us in organizing the Dr. Jigar Jadeja, who is a neurosurgeon in Rajkot, and Sri Yashpal Singh Waghela, who's an RTO inspector in Surendranagar. And now, given that we are in this day and age, I would also like to thank you all the organizations, because while we were organizing this, we got in touch with a number of organizations here in Melbourne and across the Australia, right? So I really would like to thank Rajput Yuva Sangh in India, Rajput Yuva platform in India, Rajput Association of Sydney, Rajput Association of Brisbane, Rajput Association of Adelaide. Then we have Brahma Samaj of Adelaide, Rajput Association of Perth, Patidar Samaj of Victoria, Gujarati Helpline in Australia, Brahmin Samaj of Victoria, Western Guju Incorporation in Melbourne, United Gujarati of Australia in Sydney, Gujarati Samaj of New South Wales. We have Dada Bhagwan Parivar in Sydney, North Brisbane Gujarati Samaj in Brisbane, and Kathiawadi Samaj of Queensland. And we have many others, friends and family, who has really supported us in making this a success, right? So I really would like to thanks. And the greatest idea is we are all doing this. આપણે બધું કરી રહ્યા છીએ to actually pay our part in building up a nation, right? When the entire world is suffering from pandemic, so we try and help in whatever way we can. And our respected Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi has have a PM care, and so I would appeal to everyone to donate generously. And how do we આવા સમયમાં આપણે આપણી જાતને કેવી રીતે સ્થિર રાખી શકીએ? How do we keep ourselves? That's where we lean to you, the world renowned Dr. Jitendra Adia, who would guide us on the power of mind, manni shaktiyo. The steering is on you, sir. You take it over, and it's pleasure to have you. All the friends which are watching us live right now across the globe, right? They could ask their questions in the comments. So comments ma બધા પોતાના પ્રશ્નો રાખી શકશે as you go along, and I'll help you as we go along the session, sir. There are already lots of comments coming all the way from YouTube and from Facebook as well. So I'll hand it over to you, sir, rather than taking a lot of time. Let us lighten us in this with the power of mind. Thank you, Jitendra Singh. મજા આવી ગઈ. પહેલા તો મારે તમને થેન્ક યુ કહેવું છે કે આટલા બધા લોકોની સામે તમે મને મૂકી દીધો, જે મારા માટે બી એક બહુ મજાનો પ્રસંગ કહેવાય. અને હું પૂરી ટ્રાય કરીશ કે બધાને બહુ જ મજા આવે. મિત્રો, અત્યારે આપણે કોરોનાના કાળમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. અત્યારે આપણે ખૂબ જ ચિંતાવાળા સમયમાં છીએ. જેવી ન્યૂઝ ચેનલ ખોલીએ એટલે ચિંતાવાળા જ ન્યૂઝ આવે છે. અને આવા સમયે આપણે આપણી જાતને સ્વસ્થ રાખવી અને શાંત રાખવી એ બહુ જ જરૂરી છે. અને આમાં હું તમને આજે કંઈક એવી વસ્તુ શીખવવાનો છું કે જેમાં તમે આ કોરોના સમયમાં તમારી જાતને સ્વસ્થ રાખી શકશો અને તમારી ઇન્કમને પણ વધારી શકશો. હું અત્યારે પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ કરું છું. તમે સ્લાઇડમાં જોતા જજો, સાથે મારી બી વાત સાંભળતા જજો. તમને બહુ જ મજા આવશે. આમાં સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન.
શ્યોર સર, આપની સ્ક્રીન એકવાર શેર કરી દેજો. ઓકે. શ્યોર. હા, આઈ થિંક તમે All ત્યાં set. હા, તમે PowerPoint ફૂલ સ્ક્રીન ચેક કરી હતી ને, એ કરી દો. That would be all good to go. Everything is full, so we can see you, sir. You are ready to go. Okay, we can see you, sir. Is that okay now? Yeah, all good. Ready to go. સોરી ફ્રેન્ડ, આ ટેકનિકલી આ પ્લેટફોર્મ પહેલી વાર વાપરું છું એટલે પ્રોબ્લેમ થાય, તમને બધાને અનુભવ હશે. મિત્રો, આજના મારા સેમિનારમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. આજનો આપણો વિષય છે કે આપણા મનની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને આપણી તંદુરસ્તીને કેમ સાચવવી અને ઇમ્પ્રુવ કરવી અને આપણી ઇન્કમ, આપણી વેલ્થને કેમ સાચવવી, એ બધી વાતો આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. Yes. How can I change the screen? Yeah, we can see that. Everything is. તમારે શું કરવાનું? You just press the arrow button at the down. તમારા PowerPoint, actually તમારા કમ્પ્યુટરને જ PowerPointમાં તમે next કરો, one after another one. દેખાય છે? Yes, yes, yes. ચલો મિત્રો, હું ચાલુ કરું છું. ટેકનિકલ ડિફિકલ્ટી થોડી સહન કરી લેજો. મિત્રો, મેં તમને કહ્યું એમ અત્યારે આપણે બે જ કન્સર્ન છે, આપણે સ્વાસ્થ્ય અને આપણી ઇન્કમ અને આપણી મિલકત. તમારા મનમાં એક સવાલ હંમેશા થતો હશે આ ન્યૂઝ જોઈને કે હું મારી જાતને કોરોના એટેકથી કેવી રીતે બચાવી શકું, કારણ કે તમે ટીવી પર કેટલા બધા લોકોને કોરોનાથી ટ્રીટમેન્ટ લેતા જોઈ રહ્યા છો, મરતા જોઈ રહ્યા છો, તો તમારા મનમાં એક ડર પેસી ગયો છે. આ વિચાર તમારા મનમાં પણ જરૂર આવતો હશે, બધાના મનમાં આવે એ સ્વાભાવિક છે. અને બીજું કે આ કોરોનાના સમયે મારી આવક ઓછી થઈ ગઈ છે અથવા બંધ થઈ ગઈ છે, તો હવે પછી મારા બિઝનેસનું શું થશે, મારી આવકનું શું થશે? મિત્રો, આ બે પ્રશ્ન આપણા મનમાં હોય ત્યારે આપણી પાસે બે ઓપ્શન પણ હોય છે. એક ઓપ્શન એવો છે કે આપણે ખાલી બેઠા બેઠા ચિંતા કરીએ અને કાંઈ એક્શન ન લઈએ. આપણી પાસે એક ઓપ્શન છે. ઘણા લોકો આ ઓપ્શન માને છે, એટલે કે બેઠા બેઠા ચિંતા કરી રહ્યા છે, કાંઈ વિચારી નથી રહ્યા, કાંઈ નવું કરી નથી રહ્યા. અને બીજો ઓપ્શન એ છે કે કાંઈક નવું શીખીએ કે આ કોરોનામાંથી કેવી રીતે રસ્તો નીકળે અને મારી હેલ્થ કેવી રીતે સચવાય અને મારો બિઝનેસ કેવી રીતે સચવાય અને હું શું એક્શન લઉં. તો હું તમને આ બીજા ઓપ્શનમાં મદદ કરી શકીશ. મિત્રો, હવે આપણે કાંઈ પણ કરવું હોય આપણા શરીરથી કરીએ છીએ, પણ આ શરીરને ચલાવવાનું છે આપણું મન. જ્યાં સુધી આપણું મન બરાબર ટ્રેન ના હોય ત્યાં સુધી શરીરથી આપણે સારું કામ નથી કરી શકતા. એટલે આજે આપણે થોડી મન વિશે વાત કરીશું અને આ મનની શક્તિથી જ આપણે આ કોરોનાના પેન્ડેમિકમાંથી કેમ બચવું એ આપણે શીખીશું અને આપણી આવકને કેમ વધારવી આ પણ શીખીશું. હવે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ મન વિશે. સૌથી પહેલો સવાલ એ છે કે મન એટલે શું? ઘણા લોકોને એ જ નથી ખબર કે મન એટલે શું. મિત્રો, મન આપણા શરીરમાં રહેલી એક શક્તિનું કેન્દ્ર છે, જ્યાંથી એ શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને પૂરા શરીરમાં ફેલાય છે અને દુનિયાની જુદી જુદી શક્તિ સાથે જોડાયેલ છે. જો મન શક્તિનું કેન્દ્ર છે તો પછી મગજ શું છે? મગજ આપણા શરીરનો એક ભાગ છે, જે એક પદાર્થ છે જેને તમે જોઈ શકો, જેનો ફોટો પાડી શકો, જેનો નાશ કરી શકો, જેને કાપી શકો. શક્તિને તમે જોઈ નથી શકતા, કાપી નથી શકતા, ફોટો નથી પાડી શકતા, અડી નથી શકતા. તમને ખબર છે કે શક્તિ અને પદાર્થમાં શું ફરક છે? એક્ઝેક્ટલી એ ફરક છે મન અને મગજની અંદર. કમ્પ્યુટરની ભાષામાં આને સમજવું બહુ જ ઈઝી છે. હવે બધા લોકો કમ્પ્યુટર જાણતા થઈ ગયા છે અને આપણે જયારે કમ્પ્યુટર શીખવા ગયા ત્યારે આપણને પહેલે જ દિવસે બેઝિક વસ્તુ એ શીખવેલી કે હાર્ડવેર એટલે શું ને સોફ્ટવેર એટલે શું. આપણે બધાએ સોફ્ટવેરની ટ્રેનિંગ લીધી છે, હાર્ડવેરની નહીં. હાર્ડવેરની ટ્રેનિંગ કોને જરૂર પડે? જેને કમ્પ્યુટર રિપેર કરવું છે. સોફ્ટવેરની ટ્રેનિંગ કેને જરૂર પડે? જેને વાપરવું છે કમ્પ્યુટર. મિત્રો, આપણે મનની શક્તિઓને વાપરવી છે તો આપણે મન વિશે જ જાણીશું. હાર્ડવેર એટલે કે મગજ વિશે આજે જાણીશું નહીં, તે પછી ક્યારેક વાત કરીશું. સવાલ એ છે કે આપણી પાસે કેટલા મન છે? મિત્રો, કદાચ તમને ખ્યાલ હશે આપણી પાસે બે મન છે. આ બે મન ક્યાં ક્યાં છે? જાગ્રત મન અને અર્ધ જાગ્રત મન.
કોન્શિયસ માઇન્ડ અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. હવે આ બંને મન છે તો એની વચ્ચે તફાવત શું છે? તમારા મનમાં સવાલ હશે. ચાલો આપણે તફાવત જોઈએ. જાગ્રત મન અને અર્ધ જાગ્રત મનની વચ્ચે શું તફાવત છે? મિત્રો, જાગ્રત મન પાસે ખાલી 10% શક્તિ છે, 90% શક્તિ અર્ધ જાગ્રત મન પાસે છે. આપણે ખાલી 10% શક્તિને જ ઓળખીએ છીએ અને 10%નો જ 10% ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે મુશ્કેલથી 1% માઇન્ડ પાવરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો પણ આટલી બધી પ્રગતિ કરી છે. તમે વિચારો કે આનાથી વધારે કરીએ તો શું થાય? પણ આપણે કેમ 10%થી વધારે નથી કરી શકતા? એનું કારણ છે કે આ 90% પાવર વાળું જે અર્ધ જાગ્રત મન છે એના વિશે આપણે જાણતા નથી. મિત્રો, આજે આપણે આના વિશે શીખવાનું છે, જેને કહેવાય છે અર્ધ જાગ્રત મનની શક્તિઓ. ધીસ ઇઝ લાઈક એન આઇસબર્ગ. તમે આઇસબર્ગ વિશે ખ્યાલ હશે, બરફનો પહાડ પાણીમાં તરતો હોય તો 10% જ ઉપર દેખાય, 90% નીચે હોય છે. એક્ઝેક્ટલી માઇન્ડનું એવું છે. જે નીચે છે, જે સાચું મન છે એ આપણું છે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. આજે આપણે એના વિશે વધારે શીખીશું. હવે બેનો કામ કરવાનો સમય ક્યારે છે? કોન્શિયસ માઇન્ડ આપણે જ્યારે જાગ્રત હોય ત્યારે જ કામ કરે છે, એના નામ પ્રમાણે. રાત્રે ઊંઘી જાય ત્યારે જાગ્રત મન કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે, અર્ધ જાગ્રત મન 24 કલાક કામ કરે છે. અત્યારે મિત્રો આપણા બંને મન કામ કરે છે. રાત્રે ઊંઘી જશું ત્યારે જાગ્રત મન સુઈ જશે, અર્ધ જાગ્રત મન કન્ટિન્યુઅસ કામ કરતું રહેશે. આપણે જે સપનાઓ જોઈએ છીએ, જે ગોલ સેટ કરી છે, એ આપણે જાગ્રત મનથી કરી છે. પણ આ સપનાઓને પૂરા કરવા માટે જે ભગવાને આપણને મન આપેલું છે એ છે આપણું અર્ધ જાગ્રત મન. જો તમારા ખૂબ મોટા સપના હોય તો તમારે પૂરા કરવા માટે અર્ધ જાગ્રત મનની શક્તિઓને સમજવી પડે અને ઉપયોગ કરતા શીખવી પડે, જેથી તમારા બધા સપનાઓ પૂરા થાય. જાગ્રત મન કોઈ પણ કામનો શરૂઆત કરતા પહેલા વિચારે છે. અર્ધ જાગ્રત મન પાસે વિચારવાની શક્તિ નથી. જાગ્રત મન વિચારે છે એટલે જ રાત્રે આપણે ઊંઘી જાય ને જાગ્રત મન બંધ થાય ત્યારે વિચારો બંધ થઈ જાય છે, સવારે ઉઠીએ ત્યારે ચાલુ થઈ જાય છે. એ જ બતાવે છે કે વિચારવાનો પાવર જાગ્રત મન પાસે છે. જાગ્રત મન પાસે તર્ક શક્તિ છે. તર્ક એટલે આપણા મનમાં સવાલો ઉઠે, ડાઉટ કરીએ, એને કહેવાય તર્ક. વોટ, વેન, વાય, હાઉ, વેર, એને તર્ક કહેવાય. અર્ધ જાગ્રત મન પાસે તર્ક શક્તિ નથી. જાગ્રત મનને ટ્રેનિંગ આપી શકાય છે, અર્ધ જાગ્રત મનને ટ્રેનિંગ આપવાની જરૂર નથી અને આપી પણ શકાતી નથી. આપણે જે સ્કૂલ કોલેજમાં ટ્રેનિંગ લઈ છીએ, જાગ્રત મનની ટ્રેનિંગ લઈ છીએ. હાઉ ટુ થિંક, હાઉ ટુ એનાલાઇઝ, હાઉ ટુ ઇન્ટરપ્રેટ, હાઉ ટુ જજ, હાઉ ટુ મેક ડિસિઝન. આ બધી ટ્રેનિંગ જાગ્રત મનની છે. અર્ધ જાગ્રત મનને કોઈ ટ્રેનિંગની જરૂર નથી. પણ સ્કૂલ કોલેજમાં આપણને જે પણ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે એમાં એક ટ્રેનિંગ ખૂટી જાય છે અને એ છે કે અર્ધ જાગ્રત મનનો આપણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો, જે આજે હું તમને શીખવવાનો છું. મિત્રો, તમે બધા અલાદીનની વાર્તા સાંભળી હશે. અલાદીન નામનો એક માણસ હતો જેની પાસે એક જાદુઈ ચિરાગ હતો. ચિરાગ ઘસવાથી એમાંથી જીન બહાર નીકળતો અને જીન બહાર નીકળીને શું કહેતો? હુકમ મેરે આકા. અને આકા એટલે કે અલાદીનની જે પણ ઈચ્છાઓ હતી એ ઈચ્છા એનો જીની પૂરી કરતો. મિત્રો, આ વાર્તા તમે સાંભળી ત્યારે તમારા મનમાં એવો સવાલ ન થયો કે આ વાર્તા, આવી ખોટી વાર્તા કેવી રીતે હશે, કે આ સાચી છે વાર્તા? મેં તો એ જ વિચાર્યું કે જો આ વાર્તા સાચી હોય તો મારે અલાદીનનો જાદુઈ ચિરાગ શોધી કાઢવો છે. અને મેં શોધી કાઢ્યો. ક્યાંથી શોધ્યો? મારા અંદરથી. આ વાર્તા આપણા મનની વાર્તા છે. એમાં જે જાદુઈ દીવાની વાત આવે છે એ છે આપણું મગજ. એમાં અલાદીનની વાત આવે છે એ છે આપણું કોન્શિયસ માઇન્ડ, એટલે કે જાગ્રત મન. અને જીનીની વાત આવે છે એ છે આપણું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. એટલે કે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ઇઝ લાઇક એ સ્લીપિંગ જાયન્ટ વિધિન અસ. વી નીડ ટુ અવેકન ધી જાયન્ટ એન્ડ પુટ ઇટ એટ વર્ક. આપણે અર્ધ જાગ્રત મનને ઓળખવાનું છે, એ સુતેલા મનને જગાડવાનું છે, એને કામે લગાડવાનું છે. જો આજે આ બધું તમે શીખી લેશો તો તમે આજથી જ આનો ઉપયોગ કરવાનો શરૂ કરી દેશો, કારણ કે બહુ જ ઈઝી છે, બહુ જરાય ડિફિકલ્ટ નથી. અર્ધ જાગ્રત મનને જગાડવું અને એને કામે લગાડવું બહુ જ ઈઝી છે. બીજી ભાષામાં કહું તો જાગ્રત મન છે એ પ્રોગ્રામર છે, અર્ધ જાગ્રત મન છે એ પ્રોગ્રામેબલ કોમ્પ્યુટર છે. આપણે હવે આપણું જે પ્રોગ્રામેબલ કોમ્પ્યુટર છે એનું ફરીથી રીપ્રોગ્રામિંગ કરવાના છે. એને એવું સરસ રીપ્રોગ્રામિંગ કરશું કે આપણા જીવનમાં સરસ રિઝલ્ટ મળે. હજી એક ભાષામાં વાત કરી, ખેતીની ભાષામાં, તો અર્ધ જાગ્રત મન એક ફળદ્રુપ જમીન છે અને જાગ્રતમાં એનો માળી છે, ખેડૂત છે. હવે ફળદ્રુપ જમીનને ખબર નથી માળીને શું જોઈએ છે. એ તો માળી જે બીજ વાવશે એ પ્રમાણે ઝાડ આપશે. એક નક્કી નથી કરતું કે એને બાવળનું બીજ નાખ્યું છે તો હું એને કેરીનું ઝાડ આપું. એવું અર્ધ જાગ્રત મન પાસે એવો પાવર નથી હોતો. આપણી ફળદ્રુપ જમીન છે એ તો એકદમ જે પ્રમાણે બીજ આપો એ પ્રમાણે કામ કરે છે. ભૂલ આપણે કરીએ છીએ, ખોટા બીજ વાવી દઈએ છીએ અને ખોટો પાક મળે છે ત્યારે આપણે દુઃખી થઈ જાય છીએ. મિત્રો, તો આપણે આ અર્ધ જાગ્રત મન એટલે કે આપણું જીની, એટલે કે આપણી ફળદ્રુપ જમીન, કે એટલે કે પ્રોગ્રામેબલ કોમ્પ્યુટર, એને આપણે અચ્છી તરહથી આજે સમજી લેવાનું છે, જેથી કરીને તમને બહુ સરસ રિઝલ્ટ મળે.
જાગ્રત મન પાસે લિમિટેડ પાવર છે, અર્ધ જાગ્રત મન પાસે અનલિમિટેડ પાવર છે. અત્યાર સુધી તમે જે પણ જસ્ટ સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ, આપણે ક્યાં કે વચ્ચે વી હેવ સમ મિક્સ ઓડિયન્સ હિયર, તો તમે યુ જસ્ટ બેલેન્સ ઇટ બિટવીન નંબર ઓફ લેંગ્વેજીસ. એટલે ગુજરાતી રાખજો જ, પણ યુ કેન whatever you like, you just go in English, Hindi, whatever you like. So we can cover all the views. Yeah. Okay. Sorry. Yeah. conscious mind has limited power and subconscious mind has unlimited power. दोस्तों, जागृत मन के पास मर्यादित शक्ति है, अर्ध जागृत मन के पास अमर्यादित शक्ति है. अभी तक आपने जो भी पाया है वो अर्ध जागृत मन की शक्ति से पाया है, मगर उसको आप जानते नहीं थे. आज आपको पहचान हो जाएगी और आप उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे. Now we will talk about the immune system. You might have heard from many newspaper or news channels that corona virus will attack the person who has very weak immune system. That means it is our duty to strengthen our immune system. And let me tell you, immune system is रोग प्रतिकारक शक्ति जो हमारे शरीर में रहती है, और this is under the control of our subconscious mind. And subconscious mind is particularly programmed to keep this immune system. Now, if you want to strengthen the immune system, then what you need to do is you have to reprogram your subconscious mind. And subconscious mind is working under conscious mind. That means we have the conscious control over our immune system via subconscious mind. यानी कि हमारे अर्धजागृत मन को हम कमांड दे के हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. कैसे है वो हम आगे जाके देखने वाले हैं दोस्तों. अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? कॉन्शियस माइंड इज द बॉस एंड सबकॉन्शियस माइंड इज द सर्वेंट. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द बॉस? बॉस क्या करता है? बॉस हमेशा मांगता रहता है, और सर्वेंट क्या करता है? जो बॉस ने मांगा वो देता है. देन वेयर इज द प्रॉब्लम? व्हाई पीपल आर अनहैप्पी? व्हाई पीपल आर फेलियर? उसके 3 कारण हैं दोस्तों. पहला कारण ये है कि बॉस को यही नहीं मालूम कि मेरे पास इतना बड़ा पावरफुल सर्वेंट है. शायद आपको भी नहीं मालूम था. दूसरा कारण ये है कि बॉस को ये नहीं मालूम मुझे इनसे क्या मांगना है. और तीसरा कारण ये है कि बॉस को ये नहीं मालूम कि मुझे इससे कैसे मांगना है मेरे सर्वेंट से. So because of these 3 reasons, we are struggling in life and we fail in life. Once you know all these things, and today you are going to know everything. Once you know all these 3 things, you will be very successful and there will not be any struggle in your lifetime. In nutshell, you can achieve anything and everything by using the power of subconscious mind. Friend, अर्ध जागृत मन की शक्ति का इस्तेमाल करके आप जो बनना चाहे बन सकते हैं, पाना चाहे पा सकते हैं, करना चाहे कर सकते हैं. इतनी बातों के बाद अब हम थोड़ा सा दिमाग के बारे में बात करेंगे. थोड़ा सा हार्डवेयर तो सीखना पड़ेगा. जब हम कंप्यूटर सीखने को गए तो हमको पहले दिन का बताया था, इसको मॉनिटर कहते हैं, इसको कीबोर्ड कहते हैं, इसको सीपीयू कहते हैं, ये हार्ड डिस्क होती है, ये माउस होता है, ये कीबोर्ड होता है. एग्जैक्टली ऐसा थोड़ा सा हम दिमाग के बारे में सीखेंगे. दैट मीन्स वी लर्न अबाउट द ब्रेन which is a hardware, and then again we will go to software. Now our brain is a electromagnetic waves producing machine. हमारा जो ये दिमाग है वो बिजली के तरंग पैदा करता है और वो वातावरण में फैलता है. इसको नापने के लिए डॉक्टर्स के पास एक मशीन रहता है जिसको EEG मशीन कहते हैं, electroencephalogram machine. With this machine, scientists have found out that during our different physical activity, there is a change in the activity of this electrical current. And then they have found out that we have 4 states of mind. साइकोलॉजिस्ट ने इसी EEG मशीन के जरिए ये गुण निकाला है कि हमारे मन की 4 अलग अलग अवस्थाएं होती है. एक अवस्था जिसमें अभी हम जागृत अवस्था में, हम काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं. अभी हमारे दिमाग से जो इलेक्ट्रिकल करंट निकलता है उसकी संख्या 14 to 35 साइकिल पर सेकंड है, यानी 14 to 35 साइकिल पर सेकंड. दिस इज कॉल्ड बीटा स्टेट ऑफ माइंड. This is scientifically called beta state of mind. Now when we sleep, हम जब रात को सो जाते हैं, so that time the frequency is 4 to 7 cycles per second. That is called theta state of mind. You don't have to bother about this scientific name, but just understand this concept. Now between this sleep and the conscious state, ये हमारी जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच में दोस्तों एक अवस्था होती है जिसको कहते हैं अल्फा अवस्था. इसको हिंदी में योग निद्रा कहते हैं और हिप्नोटिज्म में ट्रांस कहते हैं. टेक्निकली इसको अल्फा स्टेट कहते हैं. और ये जब हम ये अवस्था में होते हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट की संख्या 14 से नीचे और 7 से ज्यादा होती है, यानी 7 to 14 साइकिल पर सेकंड.
एक और अवस्था होती है जब कोई कोमा में चला जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तब इलेक्ट्रिकल करंट 1 to 4 साइकिल पर सेकंड होता है। दोस्तों, मैं आपको अगर ये सवाल पूछूं कि कोई डेड बॉडी का हम ईजी निकालेंगे तो इलेक्ट्रिकल करंट कितना होगा? नेचुरली 0 होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल करंट नापती है, यानी कि अगर डेड बॉडी को ईजी मशीन तो सीधी लाइन आएगी। दिस शोज कि ये इलेक्ट्रिकल करंट ही हमें जिंदा रखता है और हमारे शरीर को चलाता है, हमारी हर एक्टिविटी को ये इलेक्ट्रिकल करंट चलाता है। अब दोस्तों, इसमें एक खास बात आपको देखनी है कि देखिए, ये जो जागृत अवस्था है वहां पे 14 to 35 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी, यानी बहुत बड़ी रेंज, 20 की रेंज है। अब ऐसा देखा गया है कि हम जागृत अवस्था में ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे जीते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, और अगर हम कम फ्रीक्वेंसी पे जीने का सीख ले तो हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है। अब कोरोना का टाइम में हमें तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखनी है, तो इसका मतलब कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो, यानी कि 14 to 20 के बीच में हो, 20 से ऊपर नहीं जाने देना है। क्या ये हो सकता है? हाँ दोस्तों, हो सकता है, मगर पहले ये समझ लीजिए कि ये बढ़ती क्यों है। ये बढ़ती तब है जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, और आजकल नेचुरली सब स्ट्रेस में है, कोरोना के डर की वजह से टीवी खोलो और आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो अभी हमें क्या करना है कि इसको नीचे लाने की कोशिश करनी है, जो मैं आपको सिखाऊंगा। जितना ये फ्रीक्वेंसी टेबल नीचे लाओगे उतना आपका हेल्दी बॉडी रहेगा, आपका एजलेस बॉडी रहेगा, आपको बीमारियां कम होगी। यहाँ पे ये सीक्रेट है, इसलिए मैं आपको ये टेबल बता रहा हूँ। 14 to 35 साइकिल जो रेंज है उसको कम करने के लिए। दोस्तों, अब ये एक और चीज है कि मैं क्यों ये बता रहा हूँ। ये जो बीच का लेवल है अल्फा स्टेट, जिसको हम योग निद्रा कहते हैं, ये ब्लू पट्टे में है, ये हमारी सबसे पावरफुल अवस्था है। हमें जो भी चाहिए ये अवस्था में हम पा सकते हैं। बहुत सारा पैसा कमाना है ये अवस्था से, आपको हेल्दी बॉडी चाहिए ये अवस्था से, आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए ये अवस्था से, आपको हीलिंग करना है ये इसमें जाके, आपको भगवान को मिलना है ये अवस्था में जाके, आपको किसी के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है यहाँ जाके। यानी कि हमारी हर सफलता का राजमार्ग यही है, अल्फा स्टेट, अल्फा राजमार्ग। अब देखिए, कुदरत ने भी ऐसी अरेंजमेंट की है कि हम दिन में 2 बार नेचुरली अल्फा में से पास होते हैं। So morning when we get up, we pass through alpha state. At night when we sleep, again we pass through alpha state. हम धीरे धीरे शरीर को इनएक्टिव करते हैं और धीरे धीरे शरीर को एक्टिव करते हैं। जैसे जैसे शरीर इनएक्टिव होता जाएगा वैसा वैसा ये इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता जाएगा। जैसे जैसे शरीर एक्टिव होता जाएगा ये इलेक्ट्रिकल करंट बढ़ता जाएगा। दोस्तों, ये आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ गया तो अच्छी बात है, नहीं बैठा तो भी कोई चिंता का कारण नहीं है। ये याद रखो कि हमारा दिमाग में से बिजली का करंट निकलता है और हमारी एक खास अवस्था होती है जिसको कहते हैं अल्फा अवस्था। बस इतना याद रख लिया तो भी काफी है। जैसे मैंने पहले बताया, अल्फा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, हमारा रियल पावर वहीं पे है। अब हम अल्फा में क्यों रियल पावर है, क्योंकि जब हम अल्फा स्टेट में रहते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, अल्लादीन एंड जीनी, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यानी जीनी जाग जाता है। अल्फा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जीनी जाग जाता है, उसको ऑर्डर करने का ये पक्का समय है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि अल्फा स्टेट क्या है और व्हाई इट इज सो पावरफुल। अब आपको ये तो पता चला कि अल्फा स्टेट हमारे मन की एक खास अवस्था है जो हमारे काम की चीज है। नाउ देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, हाउ कैन आई अचीव अल्फा स्टेट? लेट मी टेल यू the very simple procedure, we call it a relaxation. It's an inner journey. You must have done outer journey many times, but if I ask you, have you gone inside? Probably no. Today we will learn a new journey called inner journey. हमारे अंदर की मुसाफरी आज हम करेंगे। जब हम हमारे अंदर जाते हैं यानी खुद को रिलैक्स कर देते हैं तो हम अल्फा में चले जाते हैं। इसके बारे में हम और आगे जाकर प्रैक्टिकली भी करने वाले हैं। अब रिलैक्सेशन कैसे करते हैं? जमीन पे या चेयर पे बैठ के, सीधा बैठ के, आंखें बंद करके, हाथों को गोदी में रख के, अभी नहीं कर रहे हैं, मैं आपको कराने वाला हूँ। हमारे विचारों को हम एक कोई जगह पर केंद्रित करते हैं, या हमारे बॉडी पार्ट पे करते हैं, या कोई दीपक के ऊपर करते हैं, या कोई अपने सांस के ऊपर केंद्रित करते हैं, कोई यहाँ पे करते हैं कपाल के ऊपर। जब आप अपने विचारों को एक जगह फोकस करते हो तो आपका शरीर रिलैक्स होने लगता है, और रिलैक्स होते होते आप अल्फा में पहुंच जाते हैं। और रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन आर द सेम थिंग।
उसमें टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, प्रोसीजर में थोड़ा फर्क है, दोनों का पर्पज वही है, अपने अंदर जाने का, अल्फा में जाने का। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन सीखने की जरूरत नहीं है, आप सही कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं आज आपको रिलैक्सेशन सिखाऊंगा और करवाऊंगा, आप उसको करते रहिए। अब आप जब रिलैक्सेशन करेंगे और अल्फा में जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अल्फा में थे या नहीं? दो टाइप की फीलिंग्स है। पहला है कि आपको ऐसा लगेगा मेरा मन बहुत शांत हो गया है, और ऐसा फीलिंग आएगा कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। इसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट। दोस्तों आप करके देखेंगे। अब आप अल्फा स्टेट में चले गए, यानी कि जीनी को जगा दिया, मगर सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कैसे देना है? जीनी को जगा तो दिया, कुछ ऑर्डर देना पड़ेगा ना। तो जीनी को ऑर्डर देने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? एक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना। दोस्तों भगवान ने हमें यहाँ एक मेंटल स्क्रीन दिया है, यहाँ के कपाल में, जिसको हम इनर स्क्रीन या मानस पटल कहते हैं। विजुअलाइजेशन इज इमेजिनिंग द फ्यूचर हियर ऑन दिस मेंटल स्क्रीन। भविष्य को वर्तमान में ये कपाल में चित्र देखने की कला को विजुअलाइजेशन कहते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोसेस, वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल प्रोसेस, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर एक बार आपने सीख लिया तो आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा विजुअलाइजेशन से। तो ऐसा कहे कि प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज है। सबकॉन्शियस माइंड इज अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज अ प्रोग्रामर। विजुअलाइजेशन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। और दूसरी एक भाषा है जिसको कहते हैं एफर्मेशन। एफर्मेशन यानी स्पोकन वर्ड या रिटन वर्ड। तो आप मान लो एक डायरी में डेली लिखता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम चला जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर फील्ड में बेस्ट बनाएगा। दिस इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों तो अब आपने ब्रेन के बारे में कुछ सीखा, माइंड के बारे में कुछ सीखा। अब हम प्रैक्टिकली स्टेप वाइज जाते हैं कि हमारे जीवन में अभी हमें दो चीजें करनी है, कोरोना से बचना है और हमारी इनकम बढ़ानी है। तो हम स्टेप वाइज सीखेंगे 9 स्टेप टू सक्सेस। अगर आपके पास कागज पेन है तो लिखना शुरू करिए दोस्तों। 9 स्टेप टू सक्सेस। पहला स्टेप, सेट योर गोल। आपको जीवन में क्या चाहिए, क्या बनना है, क्या करना है, पूरा अपना गोल डिसाइड कर लीजिए। वैसे एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। अभी हमारा 1 साल का गोल क्या रहेगा कि मुझे कोरोना से बचना है, मुझे हेल्दी रहना है कोरोना के टाइम पे, और मेरी इनकम बढ़ानी है। वैसे आप पूरे जीवन का गोल भी डिसाइड कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। ये जो स्टेप सिखा रहा हूँ मैं, कोई भी सफलता के लिए, आपको धन कमाने की सफलता, हेल्दी रहने की सफलता, कोई सामाजिक काम करने की सफलता, बिजनेस बढ़ाने की सफलता, स्वस्थ बनने की सफलता, भगवान को मिलने की सफलता, कोई भी सफलता में यही कदम आपको काम आएंगे। तो इसको आप दिल में उतार दीजिए। स्टेप नंबर 1, सेट योर गोल। जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, क्या पाना है, ये आपको डिसाइड कर लेना है। और उसके बाद का स्टेप जरूर करना है दोस्तों, डॉक्यूमेंट योर गोल। अपने गोल का दस्तावेज बनाए। ऐसा देखा गया है, माइंड पावर का विज्ञान ये कहता है कि सिर्फ यहाँ रखने से काम नहीं बनता है, आपको पेपर पे उतारना है। जब पेपर पे उतारते हैं तो आपका एक कमिटमेंट बनता है। और दूसरी बात, ये पेपर जब आप सामने दीवार पे लगाते हो तो ऑटोमेटिक रिमाइंडर सिस्टम बनता है, आप भूलोगे नहीं अपना गोल। इसलिए हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। देखिए मेरी वेबसाइट पे जाओगे, मेरी वेबसाइट है dradia.com। वहां पे जाओगे तो आपको ये विजन बोर्ड का एक सैंपल मिलेगा जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अपने सपनों के पिक्चर्स लगाने हैं। अगर ये नहीं करना है तो एक कोलाज मेकर करके ऐप आती है जो आपके फोन में मिलेगी आपको, उसमें, और आपके पास ब्राउजर है तो उसमें से फोटो निकाल के आप 5-10 मिनट में अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं। और ये मेरा एक स्टूडेंट है दिल्ली का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखिए उनका विजन बोर्ड है। उनके जितने भी सपने हैं उन्होंने पिक्चर फॉर्म में लगाया है और कुछ जगह पे उसने डेट भी लिखी है। आपको ये करना है, मगर ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी नहीं रखनी है, हार्ड कॉपी करना जरूरी है। सॉफ्ट कॉपी भी रखिए, अपने लैपटॉप पे रखिए, डेस्कटॉप पे रखिए, मोबाइल में रखिए, मगर एक हार्ड कॉपी आपके नजर के सामने होनी चाहिए। बेडरूम में लगा सकते हैं, डेस्क पे लगा सकते हैं, जहाँ काम करते हैं। नजर के सामने, जिगर के पास, ये होना जरूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को जितना रिमाइंडर मिलेगा उतना अच्छा है। और इसीलिए ये सिस्टम बनाई है जो ऑटो रिमाइंडर सिस्टम हम कहते हैं इसको। तो दोस्तों आपको विजन बोर्ड बनाना है। मैं आपको एक मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ।
आज से 40 साल पहले का ये फोटो है। मेरा छोटा भाई हसमुख, वो 40 साल पहले अहमदाबाद के एक कॉलेज में पढ़ता था, कॉमर्स कॉलेज में। उसका सपना था आईएएस करने का। आईएएस शायद आपको मालूम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो बहुत लोगों का सपना रहता है, मगर बहुत कम लोग उसमें से पास होते हैं। 1 लाख में से 600 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। तो उसका सपना था, अब उसको मालूम नहीं था क्या करे, और वो गुजराती मीडियम में पढ़ा था, जबकि आईएएस वो टाइम पे इंग्लिश मीडियम में हुआ करती थी। तब मुझे थोड़ा सा ज्ञान था, ये मेरा छोटा भाई है, तो मैंने उसको क्या कहा कि हसमुख एक काम कर, तेरे नाम के नीचे डिग्री लिखना शुरू कर दे आईएएस। बोले इससे क्या होगा? मैं बोला तुम्हें रिमाइंडर बार बार मिलेगा, बहुत जरूरी है। तो उसने क्या किया, अपने हॉस्टल के दरवाजे पे लिख दिया नाम के नीचे, देखिए आपके आई कैन सी दैट अड़िया आईएएस है। और चमत्कार हो गया। जैसे ही वो ग्रेजुएट पास हुआ, उसने पहली अटेम्प्ट की आईएएस के, और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया वो। और एज ए गुजराती, he was the 6th Gujarati to pass IAS, and in my community was the first Lohana to pass this IAS. देखिए इसके पीछे जो राज है ना, वो ये लिखा उसके अंदर है। ऑटो रिमाइंडर सिस्टम बहुत जरूरी है दोस्तों। उसने 37 ईयर गुजरात गवर्नमेंट में काम किया, उन्होंने सेवा दी, और बाद में मोदी साहब उनको दिल्ली लेके गए, मोदी साहब के सबसे ट्रस्टेड ऑफिसर रहे, और लास्ट उन्होंने इंडिया का फाइनेंस सेक्रेटरी का पोस्ट संभाला, जिसमें बड़े बड़े काम किए। जन धन योजना उनकी थी, ये नोटबंदी में उनका रोल था, ये जीएसटी में उनका रोल था, आप जानते हैं सब कुछ। तो ये उनकी लास्ट ऑफिस है, जो दिल्ली में उनकी ऑफिस थी एज ए सेक्रेटरी फाइनेंस। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये 40 साल पहले मैंने आइडिया किया था, और वो मेरा काम कर गया था। उसके बाद तो मेरा नॉलेज बहुत बढ़ गया है। अभी तो मैं एक एक छोटी छोटी चीज को जानता हूँ, माइंड पावर कैसे काम करता है। तो अगर आज मैं सिखा रहा हूँ, वो अगर करोगे तो आपके जीवन में इतनी प्रगति होगी, आप अभी बिलीव नहीं कर सकते, अभी इतनी प्रगति होगी। दोस्तों हमने 2 स्टेप देखा। पहला स्टेप था सेट योर गोल, दूसरा स्टेप था डॉक्यूमेंट योर गोल। अब हम तीसरे स्टेप की बात करेंगे, डेवलप योर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। देखिए दोस्तों, आपने पॉजिटिव थिंकिंग क्या है मालूम होगा कि ये पॉजिटिव थिंकर है या नेगेटिव थिंकर है। हम यूजुअली बात करते हैं, मगर ये वर्ड आपने शायद नहीं सुना होगा। So when we are free, we are thinking all the time. At least we are doing one thing when we are free. We keep thinking, you know. Now, what we are thinking depends on our habit. Some people are habitually positive thinkers, and some people are habitually negative thinkers. But that is all about the thinking. I am not talking about the thinking. But let me tell you, if you are a negative thinker, please be aware, because your immunity will go down. If you are a positive thinker, your immunity will go up. Now you may say, how can I change my habit from negative thinking to positive thinking? Yes, friend, I have developed a tool called Manni Pratna, prayer of mind. It is a set of positive affirmations. So if you recite this prayer of mind book every day for 21 days, you will become a positive thinker. Now, positive thinking and negative thinking are different things. Here I am talking is positive mental attitude. Now, what is this positive mental attitude? देखिए, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनका ऑलवेज फोकस रहता है प्रॉब्लम, वो हमेशा प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं, तो ये होते हैं नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड वाले। और कुछ लोग होते हैं जो ऑलवेज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, दे आर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पीपल। और नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड सॉल्यूशन में से भी प्रॉब्लम ढूंढ के आपको बताएंगे। सारी बધી વાત સાચી, પણ તો આ પણ ને તો વાળા તમે બધા જોયા હશે, આ બધા નેગેટિવ મેન્ટલ એટીટ્यूड दोस्तों। तो આપણે पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करवाना है। અત્યારે કોરોનાની વાત કરીએ, अब हम कोरोना की बात करते हैं। अभी ज्यादातर लोग नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड में हैं। बस उनको लगता है कोरोना उनको पकड़ लेगा और वो मर जाएंगे, या उनका अभी धंधा ठप हो गया, अभी कब वापिस होगा मालूम नहीं, अभी तो बर्बाद हो गया, ऐसा सोचते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। दोस्तों मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं कि कोरोना 0.1% लोगों को ही नुकसान करेगा, 99.9% को फायदा करके जाने वाला है। बिलीव में, आप मुझे 1 साल के बाद याद करना। मैं आपको थोड़ा सा स्टेटिस्टिक बताता हूँ। पहले तो कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके 1% यानी कि 1 करोड़ 30 लाख, इतने लोगों को कोरोना का बीमारी लग गया, तो भी वो सिर्फ 1% बनती है दोस्तों, सिर्फ 1% बनती है। 1 करोड़ 30 लाख, वो तो होने वाला नहीं है, फिर भी मान लो हो गई। अभी देखिए 1 लाख नहीं पहुंची है, मैं 1 करोड़ 30 लाख की बात कर रहा हूँ। अगर इतने भी हो गई तो हिंदुस्तान के 1% पॉपुलेशन को लगेगा, 99% को क्या कोई बीमारी होने वाली नहीं है, उल्टा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
उसको सब क्लिनिकल डोज में कोरोना वायरस जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा, उनकी इम्यूनिटी बन जाएगी। अच्छा, ये जो लोग बीमार होंगे 1%, मान लीजिए 1,30,00,000, उसमें सब नहीं मरने वाले हैं। अभी का स्टेटिस्टिक दिखाता है 10% लोग मरते हैं, यानी कि 13 लाख लोग। 13 लाख लोग अगर मान लो कोरोना से उनकी मौत हिंदुस्तान में हो गई तो 0.01% होता है दोस्तों। तो बाकी के 99.9% लोग, उनको तो कोरोना ने कुछ नुकसान नहीं किया। हाँ, धंधे का नुकसान किया, मगर अब धंधे के ऊपर आता हूँ। देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारी इकोनॉमी 1 साल के बाद इंप्रूव हो जाएगी, देख लेना, इंप्रूव हो जाएगी। तो इसका मतलब कोरोना ने 99.9% लोगों को तो कुछ नुकसान किया ही नहीं, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? क्यों हमेशा चिंता में रहते हैं कि मुझे कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा? इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रिकॉशन नहीं लेनी है, मगर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में का मतलब कि ये अब देखो कि कोरोना से मुझे क्या फायदा हो रहा है। मैं दोस्तों मेरी बात करूं, मुझे तो बहुत फायदा हुआ। मैं 2 महीना कभी घर में बैठा नहीं हूँ। मेरा इतना टूरिंग रहता है, इतना टूरिंग रहता है, अनइमेजिनेबल। इतना टूरिंग, मैं 50 बार एब्रोड गया हूँ पिछले 20 साल में, देखिए। तो इतना मेरा टूरिंग रहता है। दूसरी बात है कि मुझे पढ़ने का, लिखने का, नया सीखने का टाइम नहीं मिलता था, इतने मेरे कमिटमेंट रहते थे। अब क्या हुआ, एक तो पहले तो मैं मेरा ड्रीम हाउस बनाया, उसमें रहने का टाइम नहीं मिलता था, अभी मैं मेरे ड्रीम हाउस में रहता हूँ। दूसरी बात है कि मुझे पढ़ने का जो बाकी का जो बैकलॉग था मैं पूरा कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी सीखना था मुझे, ये ऑनलाइन जाने का, ये कोरोना ने मुझे सिखाया। अभी मैं आपको पूरी दुनिया में लोग बैठे और मैं सिखा रहा हूँ, ये कोरोना की वजह से जल्दी हो गया, नहीं तो अभी और लेट होता था। मेरी फैमिली को मैंने इतना टाइम दिया, ये भी हुआ। मैं अभी घर में काम में हाथ बटाता हूँ, मुझे तब पता चलता है कि मेरी फैमिली को या घर में नौकर है उनको कितनी तकलीफ होती होगी। आप भी करते होंगे, घर को सफाई करना, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, उसमें मैं भी हेल्प करता हूँ। तो ये भी मुझे करने का मौका मिला और अप्रिशिएट करने का मौका मिला कि हमारे नौकरों को कितनी तकलीफ होती होगी। मिनिमम चीजों से जीने का दोस्तों मैंने सीख लिया। अभी हम मिनिमम चीजों से जी रहे हैं और इतना कम बजट में जी सकते हैं, ये भी मुझे पहली बार रियलाइज हुआ। मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि होटल का खाना नहीं खाने से कितने स्वस्थ रह सकते हैं। मुझे तो रोज 3 घंटा में हेल्थ को देता हूँ, जो पहले इतना नहीं देता था। अब देखिए मुझे क्या नुकसान हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, फिर भी लोग रोते रहते हैं। क्यों नुकसान नहीं हुआ? क्योंकि मैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मैं देखता हूँ, मैं हमेशा यह सोचता हूँ यार कोरोना तुमने तो बड़ा काम कर दिया मेरा, समझे ना। और मुझे कोई डर नहीं है कोरोना मुझे पकड़ लेगा, क्योंकि मैं पक्का पॉजिटिव थिंक करूँ, पक्का पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखता हूँ, तो मुझे कुछ होने वाला ही नहीं है। इबोला चल रहा था तब मैं अफ्रीका गया था, जब डेंगू फीवर और ये चल रहा था तब मैं महाराष्ट्र में प्रोग्राम कर रहा था। लोग मुझे डराते थे, मैं बोला मुझे कोई नहीं होने वाला है, समझे ना। तो मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी इंफेक्शन हॉस्पिटल में 10 साल काम किया, वहीं पे रहता था मैं, बम्बई के अंदर। आज जहाँ कोरोना के मैक्सिमम पेशेंट है बम्बई में, कस्तूरबा हॉस्पिटल, उसके बीच में मैं 10 साल रहा हूँ। मेरा बेटा पैदा वहीं पे हुआ है, उनका जन्म वहीं पे हुआ है। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इस टाइम पे बहुत जरूरी है। हाउ कैन यू डेवलप इट? उसका एक ही तरीका है, आज रात को बैठ के आप कागज पेन लेके लिस्ट बनाइए कि कोरोना ने आपका क्या फायदा किया। मैंने तो मेरे फायदे गिना दिए, ये तो जल्दी जल्दी गिना दिए। मैं तो इतना बड़ा लिस्ट बनाया है कि कोरोना ने मुझे इतना फायदा किया। दोस्तों आपको भी बहुत फायदा किया होगा। आज के बाद वो लिस्ट बनाइए, कोरोना ने क्या फायदा किया, डेली एक बार सुबह में पढ़ लीजिए। पूरा दिन आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में रहेंगे। करोगे कि नहीं करोगे ये? ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ओपरा विंफ्रे को शायद आप जानते हैं। She said, "The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude." ओपरा विंफ्रे कहती है कि इस सदी की सबसे बड़ी शोध यह है कि आदमी अपना एटीट्यूड चेंज करके अपना फ्यूचर बदल सकता है। आपको फ्यूचर अच्छा चाहिए ना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करिए। स्टेप नंबर 4, क्रिएट ए बर्निंग डिजायर टू अचीव योर गोल। देखिए दोस्तों, दुनिया में सब इंसान को धनवान बनना है, सुखी होना है। सब इंसान की विश है ये, सब इंसान उसके लिए डिसीजन भी लेते हैं, मगर सब इंसान धनवान नहीं बनते हैं, सुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि सिर्फ इच्छा करने से या डिसीजन लेने से नहीं होता है। इस इच्छा को आग में बदलना पड़ेगा, एकदम कमिटमेंट कि मुझे बस ये करना ही है। अपने आप को कमिटमेंट दो कि मुझे आगे बढ़ना है, जीवन में सुखी होना है, ये कोरोना को पार करना है। कोरोना के समय में और कोरोना के बाद मेरी इनकम बढ़ानी है। देखिए मेरी इनकम कोरोना के टाइम पे बढ़ गई पहले से, ये मेरा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का कमाल है। मैं जितना कमाता था उससे घर में बैठ के ज्यादा कमा रहा हूँ दोस्तों। तो आपको एक बर्निंग डिजायर क्रिएट करनी है आपके अंदर। कैसे क्रिएट करनी है?
तो आपको अपना विजन बोर्ड लगाना है और उसमें ये कोरोना का फोटो भी लगा दो और डेली कहो कोरोना को, आई एम गोइंग टू फाइट विथ यू, और तुम मेरे को हरा नहीं सकते। डेली कोरोना के पिक्चर को देख के बोलो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं जीतने वाला हूँ तुम्हारे सामने। ऐसा करने से आपको कोरोना से फाइट करने की बर्निंग डिजायर बढ़ेगी और आपके जीवन में फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये चौथा स्टेप था दोस्तों। अभी पांचवा स्टेप, बिलीव दैट यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। जब तक आप मानोगे नहीं कि ये होगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। Clement Stone has said that whatever a human mind can conceive and believe it can achieve, you have to believe it, then only it will happen. You have to believe that you are going to pass through this corona period without any harm or healthily. अगर आप बिलीव करोगे तो आप कोरोना को आराम से पास कर लोगे, कुछ नहीं होगा। You have to believe that your income is going to increase even during and after the corona pandemic is over. ये बिलीव कैसे उत्पन्न करोगे? अपना विजन बोर्ड में सामने लगा दो दीवार के ऊपर और उसके सामने देख के डेली 3 बार बोलना है, माई बिजनेस इज गोइंग टू फ्लरिश आफ्टर कोरोना, माई बिजनेस इज गोइंग टू फ्लरिश आफ्टर कोरोना, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोरोना। ऐसा करने से आपके अंदर एक बिलीफ उत्पन्न होगी और वही बिलीफ दोस्तों आपको रिजल्ट देगी। स्टेप नंबर 6, विजुअलाइज योर गोल इन अल्फा स्टेट डेली। यू नो व्हाट इज विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन यानी फ्यूचर को वर्तमान में हमारे कपाल के ऊपर चित्र के रूप में देखने का, यानी कल्पना चित्र देखने का। यू हैव टू विजुअलाइज। आंखें बंद करके, अगर आप अपनी आंख बंद करके आईबॉल को ऊपर करोगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगा, वहां पे आपको चित्र देखना है, मूविंग चित्र देखना है। आप जो फ्यूचर चाहते हो वो फ्यूचर को क्रिएट करना है। दोस्तों, मेरी प्रेरणा का झरना किताब के ऊपर मैंने पंचलाइन लिखी है, कोई भी घटना 2 बार बनती है, पहले इंसान के मन में फिर बाहर की दुनिया में। इंसान के मन में बनाना यानी कि विजुअलाइज करना। जो घटना आप यहाँ पे बनाओगे वो घटना आपकी बाहर की दुनिया में बनेगी दोस्तों। तो आपको डेली विजुअलाइज करना है। चलिए विजुअलाइज प्रैक्टिकली करने का मैं सिखा देता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, आप सीधा बैठ जाइए, थोड़ा सा चश्मा नहीं पहना है तो निकाल के बाजू में रख दीजिए, हाथ अपने लेफ्ट पे रख दीजिए और मैं थोड़ा सा सजेशन दूंगा, वो करते जाइए और ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा रिलैक्सेशन एंड विजुअलाइजेशन। थोड़ा सा म्यूजिक बजेगा, आप म्यूजिक के साथ करेंगे। एक गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए अपनी दोनों आंखें बंद करें और देखिए आपकी सांस कैसे चल रही है। हवा अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अपना ध्यान अपने सांस के ऊपर ही रखें। देखिए आपकी सांस कैसे चल रही है। धीमी और गहरी सांस। अपने नस से एक गिनती करूंगा, हर गिनती के ऊपर आप और रिलैक्स होते जाओगे और एक के ऊपर आप बिल्कुल आंखों में चले जाओगे। I am going to count from 10 to 1. With every count, you will be more and more relaxed. And on count of 1, you will be in a state of mind. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. You are completely relaxed now. अभी आप अल्फा अवस्था में है। अब आप कल्पना करें, विजुअलाइज करें कि आप पूरा सांस एकदम हेल्दी है। नेक्स्ट ईयर May 2021, you are still healthy. 2022 May, you are still healthy, and you have reached to 100 years of your age, and you are celebrating your 100th birthday. विजुअलाइज करें आप अपना 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। आंखों के पर्दे के ऊपर अपने बर्थडे पार्टी को देखिए। जो आप 100 साल पूरा करेंगे तब आप मनाएंगे। आप विजुअलाइज करें कि आपके इनकम ये कोरोना के पीरियड में बढ़ रही है और कोरोना के बाद बढ़ गई है। ऐसा विजुअलाइज करें और फील करें। विजुअलाइज करें और फील करें। दोस्तों, मैं 1 से 10 की गिनती करूंगा, हर गिनती के ऊपर आप ये रिलैक्सेशन अवस्था से बाहर आते जाएंगे
और 10 के ऊपर बिल्कुल जागृत हो जाएंगे। And you will be feeling fresh and bright. 1, 3, 4, 5, 6. You are coming out of this relaxation. 7, 8, 9. Then you will rub your palm and put it on your eyes and then gently open your eyes. जब मैं 10 कहूंगा तो आप दोनों हाथ की हथेली खींचेंगे, आंखों पे दबाएंगे और फिर धीरे से आंखें खोलेंगे। 10. दोनों हाथ की हथेली खींचे और आंखों पे दबाए और फिर धीरे से आंखें खोले। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको? मगर खुलते ही आपको आंखों के सामने एक भयानक चेहरा दिख गया। दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने इससे बड़ा चमत्कार कहीं नहीं देखा। ये लड़का आपका राजपूत कम्युनिटी का ही है और 6 महीने पहले राजकोट में मेरे प्रोग्राम में आया था। उनके आंखों, उसके फेस के ऊपर मसा थे, इसको मसा गुजराती में कहते हैं और इसको इंग्लिश में वॉट कहते हैं। कितने सारे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, किसी को उसको फायदा नहीं हुआ। फिर उसके पापा मेरे दोस्त थे, उन्होंने इसको मेरे प्रोग्राम में भेजा कि डॉक्टर अड़िया आप कुछ करो। ये बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से अपना सीखा और घर जाके उसने विजुलाइज करना चालू किया। डेली रिलैक्सेशन करता था और डेली विजुलाइज करता था। क्या विजुलाइज करता था? उनका क्लीन फेस, कि उनका पहले जैसे ही क्लीन फेस हो गया है ऐसा वो विजुलाइज करने लगा। और दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज, 2 महीने के बाद उनका ये चेहरा हो गया। देखिए, मैं भी देख के आया 2 महीने के बाद ओनली विजुअलाइजेशन। डॉक्टर के ट्रीटमेंट तो कर चुके थे, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, कितने सारे स्किन स्पेशलिस्ट चेंज किया था। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। तो क्या आपको कोरोना से भी नहीं बचा सकता है? बिल्कुल बचा सकता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास ये सब कुछ है, सब पावर है, हीलिंग पावर भी हमारे पास है। देखिए, एक मैं क्लिप दिखाता हूँ। ये जिम कैरी, आप शायद जानते होंगे, हॉलीवुड का एक्टर है। उसकी इच्छा थी कि उसको एक ही फिल्म में $10 मिलियन मिले। तो उसने क्या किया, एक चेक बनाया $10 मिलियन का, अपने वॉलेट में रखा और डेली खोल के विजुलाइज करता था और उसको एक फिल्म के अंदर रियल में मिला, डम एंड डमली फिल्म में। देखिए, So we can listen to the audio actually. Like that's you can summarize. तब मैंने summarize कर दिया। देखा दोस्तों आपने? ये इनको आप शायद चेहरे से नहीं जानते होंगे। ये बहुत बड़े इंसान है, सऊदी भाई दौलत के नाम है। उनका न्यूज आपने देखा होगा। 3 साल पहले उन्होंने दिवाली में अपने स्टाफ को 1200 लोगों को कार गिफ्ट दिया था। ये न्यूज आपने पढ़ी होगी। ये अमरेली से है, 5 किताब पढ़े हुए हैं, मगर जिंदा दिल इंसान है। 20 साल पहले मेरे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने वो टाइम पे विजुअलाइजेशन सीखा था। तब उनका बिजनेस बहुत छोटा था, छोटा यानी उनके हिसाब से छोटा था। 300 करोड़ रुपए का उनका एक्सपोर्ट था, जो वो छोटा मानते हैं। दोस्तों, विजुअलाइज करना चालू किया और उसने क्या बनाया है। अभी 8000 करोड़ का उनका बिजनेस है। सोचिए, 8000 डायमंड एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस है। देखिए, वो अपनी बातें बता रहे हैं कि उसने कैसे मेरा प्रोग्राम अटेंड किया और कैसे सीखा था। सऊदी भाई धोड़किया को देखते हैं।
Yep, the audio is actually not coming up, sir. Clip નો તમારો audio નથી આવતો. હે આપના હેલો clip નો જે audio છે એ નથી આવતો actually. ઓકે હવે આ બીજું બતાવું છું આ જુઓ તો Yep. Maybe you play it from a different device, then it would come. આવે છે No. નથી આવતો No, because I think it's because of the same device. The audio is not coming. Okay, forget it. Hello दोस्तों, because of technical problem, audio is not coming, so I am just describing you that Yeah. man, Sujay Bhai Thodakia, used to visualize his business growing and he has grown to a tremendous level. Another video I wanted to show you was Sairam Dave. Sairam Dave का एक्सपीरियंस बताऊं, राजकोट में उनकी स्कूल है, 2500 में वो नौकरी करते थे प्राइमरी स्कूल में और उन्होंने विजुलाइज करना चालू किया कि राजकोट के पोस्ट एरिया में मेरी स्कूल हो तो आज 64 क्लासरूम की पोस्ट एरिया में उनकी स्कूल है और 1500 बच्चे पढ़ते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि ये विजुलाइजेशन मैंने कैसे किया और क्या हुआ और उसने कहाँ से सीखा, ये सब बातें वो कर रहा है। तो सॉरी अभी ऑडियो नहीं आ रहा है तो मैं बंद किया उसको। स्टेप नंबर 7। तो दोस्तों आपको पता चल गया विजुलाइजेशन क्या है। अब नाउ स्टेप नंबर 7, गिव एफर्मेशन। अब एफर्मेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है, कोरोना डायरी, जिसके अंदर डेली लिखना है, या माय बिजनेस डायरी, उसमें लिखना है माय बिजनेस विल गेट डबल आफ्टर कोरोना। डेली एक पेज भर के लिखना है कि ये कोरोना जाने के बाद मेरा धंधा डबल हो जाएगा, मेरी इनकम डबल हो जाएगी। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं तो आपकी इनकम डबल हो जाएगी, ऐसा आपको करना है। तो देखिए सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल के आपका धंधा डबल कर देगा। दिस इज कॉल्ड एफर्मेशन। ये एक और ऑडियो है, इंग्लिश ऑडियो, अगर वीडियो है, अगर ऑडियो नहीं आए तो मुझे बता। You may play from your mobile. તમારા મોબાઈલમાંથી તમે વગાડી શકો કદાચ, because it's not picking up the sound from the same device. नहीं, forget it then, forget it. मोबाइल में नहीं मार। Okay. Okay. So I will not show you because there is no audio. Anyway, technical problem. This step number 8, express gratitude. दोस्तों, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, मगर हम कभी भी भगवान का शुक्रिया नहीं मानते, मांगते रहते हैं और अभी भी हम मांग ही रहे कोरोना के अंदर भी। एक काम करिए, डेली मॉर्निंग में उठ के भगवान का शुक्रिया अदा करिए, है भगवान तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। अगर ये करोगे तो आपको भगवान और देंगे। एक वीडियो है, मैं फिर से स्किप करूंगा क्योंकि फिर से स्टेप नंबर 9, टेक मैचिंग एक्शन। मैचिंग एक्शन का मतलब क्या? आपके अभी तो 2 गोल है, एक तो कोरोना से बचना, और कोरोना से बचने के लिए मैचिंग एक्शन क्या है? बार बार हाथ धोने का, मास्क लगा के जाने का, अननेसेसरी क्राउड में नहीं जाने का, बाहर नहीं जाने का, और अपना इम्यूनिटी बढ़ाने का, प्रोटीन वाला खाने का, एक्सरसाइज करने का, इसको कहते हैं मैचिंग एक्शन। बचने के लिए हुआ, और आपकी इनकम डबल करने के लिए क्या करना है? तो आप घर पे इनकम कैसे डबल होगी? 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स हो सकती है। दोस्तों मैं आपको एक टिप देता हूँ, बराबर ध्यान से सुनिए। एक इंसान अगर मजदूरी कर रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, एक मजदूर को इंडिया में एक दिन का 300 रुपया मिलता है, एक दिन का। ये 300 रुपया पाने के लिए वो क्या कर रहा है? अपने शरीर को घिस रहा है, मेहनत कर रहा है। ठीक है। अब दूसरा, एक प्रोफेसर है जो कॉलेज में लेक्चर देता है और उसके 90,000 पर मंथ सैलरी है, रोज का 3000 रुपया हुआ। वो क्या कर रहा है? किस चीज का पैसा मिल रहा है उसको? अपना नॉलेज बेच रहा है, वो अपना नॉलेज स्टूडेंट को बांट रहा है। तो देखिए, एक मजदूर सिर्फ शरीर का इस्तेमाल करता है तो उसको 300 रुपया मिलता है, और अगर नॉलेज आप बेचोगे तो आपको 3000 मिलेगा, यानी 10 गुना पैसा मिलता है। तो आपको पैसा कमाना है 10 गुना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉलेज बांटना पड़ेगा। ओके। अहमदाबाद में एक डॉक्टर है, सब लोग उनका नाम जानते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, नी रिप्लेसमेंट करते हैं, बहुत बड़े फेमस सर्जन है, पूरी दुनिया से लोग नी रिप्लेसमेंट के लिए अहमदाबाद आते हैं। अभी मैं उनको मिला था, मैं पूछा सर आप कितने डेली ऑपरेशन करते हैं? तो 20-25 तो बोलते करता हूँ मैं। अब मान लीजिए एवरेज 20 करते हैं, और मान लीजिए उनको जो पैसा कलेक्ट करती है हॉस्पिटल, उसमें से 1.5 लाख सर्जन को देती है। मान लीजिए वो डेली 20 ऑपरेशन करते हैं, तो 1.5 लाख के हिसाब से 20 ऑपरेशन का उनको कितना मिलता है? और मैं आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट ऑपरेशन, उसको एक ऑपरेशन करने में 8.5 मिनट लगती है दोस्तों।
8.5 मिनट में वो एक ऑपरेशन करते हैं और ऐसे रोज 20 ऑपरेशन करते हैं, यानी टोटल मुझे लगता है 1 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन नहीं करते हैं, जिसमें उसकी इनकम होती है 30 लाख रुपया पर डे दोस्तों। अब देखिए, एक मजदूर 300 रुपया अपना शरीर घींच के कमा रहा था, एक प्रोफेसर अपना नॉलेज बेच के 3000 रुपया कमा रहा था, और ये सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो नी रिप्लेसमेंट करके रोज के 30 लाख कमाते हैं। तो पैसा कहाँ है? नॉलेज एंड स्किल बेचने से। ये सर्जन क्या कर रहे हैं, उनके पास ऑपरेशन करने का नॉलेज है और उनके हाथों में स्किल है, फटाफट 8.5 मिनट में ऑपरेशन कर लेते हैं। तो आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? नॉलेज एंड स्किल बढ़ाना पड़ेगा। कब बढ़ाओगे? अभी कोरोना के टाइम में घर में बैठे बैठे करो, क्या प्रॉब्लम है? कोई भी, मैं स्किल बढ़ा रहा हूँ, देखिए। तो स्किल एंड नॉलेज बढ़ाने से होता है। एक और मैं आइडिया देता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनकी रोज की 30 करोड़ की इनकम है और कुछ नहीं करते। वो उसने इन्वेस्ट करके रखा है पैसा, उसने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। वाइफ की इनकम है रोज की 30 करोड़ की। गणपत भाई पटेल, गणपत यूनिवर्सिटी का मालिक, जो मेहसाणा में गणपत यूनिवर्सिटी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे खास दोस्त है, अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने आज से 20 साल पहले 500 मिलियन की अपनी कंपनी बेची थी और सब पैसा वॉरेन बफेट की कंपनी में लगा दिया। देखिए, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। रोज का 30 करोड़ घर बैठे बैठे मिल रहा है। अच्छा, इससे भी आगे सोचो, मार्क जुकरबर्ग ने पैसा कहां से कमाया? एक आइडिया से, फेसबुक का आइडिया। और अमेजोन का मालिक ने पैसा कैसे कमाया? एक आइडिया से कमाया। उसने इसमें से कुछ नहीं किया। दुनिया का सबसे धनवान आदमी अभी एज ऑन टुडे अमेजोन का मालिक है। 10 साल में वो वहां पे पहुंच गया, सिर्फ आइडिया। क्या आइडिया किया? लोगों की लाइफ को इजी कैसे बनाना। ये अमेजोन क्या करता है, लोगों को हर चीज घर पे पहुंचाता है। लोग आलसी है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों को मेहनत नहीं करनी है। इन्होंने देख लिया कि लोगों को अगर घर में बैठे सब कुछ मिलने लगेंगे तो लोग मुझे धनवान बना देंगे। उन्होंने अमेजोन का आइडिया लाया और आज क्या हुआ? अमेजोन कितना पैसा कमा रहा है रोज का? एक आइडिया की वजह से। दोस्तों, धनवान बनने के लिए आइडिया जरूरी है और आइडिया सबकॉन्शियस माइंड से आता है। अभी आप घर में बैठे हैं, रोज रिलैक्सेशन करेंगे घर में बैठ के और कॉन्शियस माइंड को शांत करते जाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते जाएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे कुछ आइडिया देगा जो आपको गणपत भाई पटेल बना दे, जो आपको निर्मा वाले कृष्ण भाई पटेल बना दे, या आपको अमेजन का मालिक जैसा बना दे, या फ्लिपकार्ट का मालिक है जो सचिन बंसल वो बना दे। ये सिर्फ आइडिया। ज्यादा धनवान बनने के लिए आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत, नॉलेज, स्किल इससे भी ज्यादा दोस्तों। तो इसको कहते हैं मैचिंग एक्शन। अभी आपके पास मैचिंग एक्शन लेने का बहुत समय है, आपको ये करना है दोस्तों। देखिए, ये 9th स्टेप मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आप चाहे तो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, मगर उसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको एक लिंक भेजी है हमारे दोस्त ने, जितेंद्र भाई ने, तो वो लिंक में जाके आप गूगल फॉर्म भरोगे तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन वहां भेज दूंगा ईमेल में या व्हाट्सएप में, पूरा प्रेजेंटेशन। फिर भी अभी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। स्टेप नंबर 1, सेट योर गोल। अनदर, डॉक्यूमेंट योर गोल। थर्ड, develop positive mental attitude. Step 4, create burning desire to achieve your goal. Step 5, believe that you will achieve your goal. Step 6, visualize your goal in alpha state. Step 7, give auto suggestion regularly. Step 8, express gratitude. And step 9, take making action दोस्तों। ये 9 स्टेप आपको दिल में रख देना है, कोई भी सफलता के लिए ये जरूरी है दोस्तों। अगर आपको लिंक मिस हो जाए तो मेरी फेसबुक के पेज पे जाइए, वहां पे मैंने रखा है, वहां से क्लिक करके आप फॉर्म भेज देंगे तो भी आपको मिल जाएगा। मैं फ्री बुक भी भेजूंगा और बहुत कुछ भेजूंगा मैं। और मेरे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, फ्री प्रोग्राम होते हैं, वेबिनार होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है। जैसे आज रात पे मेरा अमेरिका के लिए ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है। पूरा अमेरिका का कड़वा पाटीदार समाज, 500 से ज्यादा लोग हैं वहां पे। मैं नया सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। ऐसे मेरे सब्जेक्ट चलते रहते हैं। तो अगर आपको ये अटेंड करना है तो आपको गूगल फॉर्म भरना जरूरी है दोस्तों। Correct. I've actually pasted the link in the comments, so all the audience can copy it from the comments in the Facebook Live and in YouTube. ओके, कमेंट में है, फेसबुक लाइव में आपको कॉपी कर लीजिए और उसमें गूगल फॉर्म भर दीजिए दोस्तों। मुझे राजपूत समाज वाले ने पूछा कि सर आप बोलने का पैसा कितना लोगे, आपका प्रोफेशनल फीस?
मैंने बोला देखो भगवान ने मुझे तो काफी दिया है, मगर हमारे देश को बहुत जरूरत है। मुझे कुछ मेहनत का पैसा नहीं चाहिए, मगर मोदी साहब को चाहिए अपने देश को कोरोना से बचाने के लिए। एक काम करो, सबको अपील करो कि आप डोनेशन करो ये पीएम केयर्स के लिए। तो मैं आपको भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, भगवान ने आपको बहुत पैसा दिया है, $10 से लेकर $1,00,000 तक जितना भी देना है आप प्लीज डोनेट करिए। ये संस्था के थ्रू ही करिए या आपकी कोई संस्था के थ्रू करिए। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपने कितना दिया। मैं गुड फेथ में कहता हूँ, आप गुड फेथ में करेंगे। $10 तो आपके लिए बड़ी चीज नहीं है। वैसे मैं आपको $10 चार्ज करता था तो आप आते थे ये सीखने के लिए, मगर मैंने वो नहीं किया है। मैं आपको बाद में हाथ जोड़ के कहता हूँ कि पीएम केयर फंड में आप दीजिए, संस्था के थ्रू दीजिए या खुद डायरेक्ट भेज दीजिए। उसकी लिंक आपको भेजेंगे ये, तो वहां जाके कर सकते हैं आप, और ये जरूर करिए। दोस्तों, ज्यादातर हमारे राजपूत समाज के दोस्त हैं। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज मेरे पास, आपको शायद नहीं मालूम होगा कि मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे यंग जनरेशन ट्रेनर बनाता हूँ। पिछले बहुत साल से कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 400 से ज्यादा ट्रेनर बनाए हैं, और कंटिन्यूस साल में 2 बार मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसमें से एक स्टूडेंट है जिसका नाम है हिमानी चावड़ा, जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं। जितेंद्र जी, आपको उनको ऑन कर देना है। हिमानी चावड़ा जो आज से 8 साल पहले मेरे पास ट्रेनिंग में आई थी, आज इतना अच्छा काम कर रही है, जबरदस्त काम कर रही है। उनको ही मैं 1 मिनट प्लेटफॉर्म देता हूँ, वो ही आपसे बात करेगी। दोस्तों, वो आपकी राजपूत समाज का गौरव है, शायद आप जानते नहीं है। ये 10 साल से मेरे साथ है, 10 साल पहले मैंने उसको ट्रेनिंग दी है। हिमानी को ऑन कर दीजिए। हिमानी, आर यू देयर? Thank you for the surprise, Dr. Saib. I'm putting on Himani Happiness Hub. Yes. Yeah, I hope you all can see Himani. Acha, can anybody see me? Is it? Yeah, we can see you. You're live. Okay. सबसे पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत समाज का एंड जितेंद्र सर का कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आज इनवाइट किया। एंड सबसे पहली बात तो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा, मैं भी कब से सुन रही थी। एंड सर की अगर बात करें तो मैं सर की स्टूडेंट हूँ, एंड सर के बातें जो उन्होंने 9 चीजें सिखाई ना, मैंने देखा है 10 साल से सर को देख रही हूँ, वही चीजें उन्होंने जिंदगी में ऑब्जर्व की है। और सबसे बड़ी सफलता अगर सर ने अपनी जिंदगी में कोई पाई है ना, तो अभी आप देख सकते हैं उनकी हेल्थ। दोस्तों, कहते हैं कि हेल्थ से बड़ी कोई सफलता इस दुनिया में नहीं हो सकती है। 70 इयर्स की उम्र पे कभी आप सर को लाइव मिलेंगे तो आपको पता चलेगा एक यंग, एक युवा पर्सन को भी वो शर्म आ जाए, उतनी एनर्जी से काम करते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने फॉलो की है। इतना मतलब सर की वजह से हम सभी लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिला है। सर से बहुत कुछ मैंने जीवन में सीखा है। तो आज राजपूत समाज का प्रोग्राम था और मैं भी एक राजपूत हूँ, तो इसलिए सर ने बोला कि आज तुम्हें जरूर आना है। सबसे पहला मैं बात करूं तो मेरा नाम हिमानी चावड़ा है, मैं अहमदाबाद से हूँ। जैसे मेरा नेटिव वैसे सुरेंद्र नगर है। एंड मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है हिमानीज हैप्पीनेस हब। अगर आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे मुझे देख सकते हैं तो वहाँ पे हमारा ये पेज एंड यूट्यूब चैनल है। हमारा एक लव यू जिंदगी वीडियो है जो बहुत ही वायरल हुआ है। एंड मोर देन 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने का पिछले 8 सालों में मुझे मौका मिला। इंडिया के साथ साथ सर की तरफ से ही, सर के से ही इंस्पिरेशन लेके अलग अलग कंट्रीज में मैं भी प्रोग्राम करती हूँ। तो मेरा जो प्रोग्राम है उसका एक छोटा सा चीज आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपने सीखी है, तो साथ में एक और चीज जिंदगी में हमेशा अपनाइए, दैट इज कॉल्ड दी हैप्पीनेस। मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी को खुशियों का केंद्र बनाओ, खुद खुश रहो, खुशियां फैलाओ। हम थोड़ा उल्टा करते हैं, पूरे गांव के टेंशन का केंद्र बन के घूमते हैं। हम इंडियंस को तो बाजू वाले के घर का भी टेंशन रहता है। तो जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती। और एक छोटी सी स्टोरी है कि 2 दोस्त बैठे थे, एक बहुत उदास था तो दूसरा उसको पूछता है कि तू इतना उदास क्यों है। तो सिंपल कहता है कि यार एक दिन आएगा और हम मर जाएंगे, एक दिन आएगा और हम मर जाएंगे। उसका दोस्त उसे कहता है कि इस वजह से उदास है। अरे ये सोच कि एक दिन आएगा हम मर जाएंगे, पर उसके पहले के सारे दिनों में हम जिंदा होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम दे दो तो तुरंत सॉल्यूशन ढूंढ निकालते हैं, और दूसरे होते हैं उसको सॉल्यूशन दे दो वो उसमें से भी प्रॉब्लम ढूंढ निकालते हैं। तो अगर हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे सर ने आज बताया है कि हैप्पी रहने की बात जो की है, अगर वो हम अपनाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और मेरे प्रोग्राम का एक ही थीम होता है, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि 5 सेकंड की हंसी
आपकी फोटो को हमेशा हमेशा के लिए बेहतर बना सकती है, तो अगर आप जिंदगी भर हंसते रहेंगे तो देखिए आपकी आने वाली जिंदगी कितनी बेहतरीन हो सकती है। तो अगेन हमारे पास वक्त की कमी है, बट इसी सब्जेक्ट के ऊपर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। मैं भी अपने हैप्पीनेस के वेबिनार्स लेती हूँ, एंड अभी अभी हमने राजपूत समाज कनाडा एंड यूएसए के अंदर हमने हैप्पीनेस का वेबिनार लिया, एंड विल सी के फ्यूचर में हम ऑस्ट्रेलिया में भी सर, और हम प्लान कर रहे हैं कि साथ में आएंगे और ऐसे प्रोग्राम करेंगे, ऐसे वेबिनार्स और भी हम प्लान कर सकते हैं। So again, once again, thank you so much, sir, and this Rajput Association for inviting me. And मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं राजपूत समाज की फर्स्ट लेडी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बिकॉज हमारे समाज में आज भी इंडिया में हम देखते हैं कि कई बार लड़कियों को इतना फ्रीडम नहीं मिलता, इतना बड़ा चांस नहीं मिलता, बट ऑफ कोर्स मम्मी पापा का सपोर्ट एंड सर के आशीर्वाद है तो आज इस मुकाम को हासिल किया है और आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो आप YouTube पे एंड Facebook पे हिमानीज हैप्पीनेस हब पे जरूर जाइएगा, बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, जरूर देखिएगा और जिंदगी में हैप्पीनेस को पाइएगा। थैंक यू सो मच। ऑस्ट्रेलिया में लाइव प्रोग्राम करेंगे। Correct. And Himani, I just wanted to thank you on behalf of everyone, all the viewers and the Rajput Association of Australia. Like Dr. Saibeto Akhu cake, I'm happy, but you were like a cherry on the cake, right? So that is one of the beautiful moments. And we're proud that you represent the Rajput Samaj and you born and brought up in the Rajput families. And Saib, aapnu je session hadu, that was really amazing. And we definitely would like. Practical baaki hai. Yeah, definitely. Look, I was just gonna say that we would love to have both of you down under in Australia when things get settled with pandemic Corona-19. But it was really amazing session, sir. And apna session ni takeaways bahut badi jabardast. I could represent the all the community who's watching live. I would say कि मैंने बे चार वस्तु बहुत हिट करी गई कि your step number 8 की express your gratitude, right? That if you have the gratitude in life, that's probably would make you work as an individual. પછી આપણે કીધું affirmations, right? When we decide something, usually ઘણી વાર બહુ બધા challenges આવતા હોય. Having that affirmation every day that I can do it and we together can do it, it's a win in itself, right? It was mind-boggling and really informative. I can't express my feeling. It was really good, sir, and we are so thankful. All the organizations, all the viewers. Ajay, baaki hai 5 minutes. Yeah, sure. Keep ahead. Keep going. And don't conclude it. Okay. So nice to see you, Himani. हमारे साथ एक महीना नायरोबी भी आवेली है 10 वर्ष पहला, and we had a great program there together, and now we have decided to again come America, Australia, everywhere. That's why I introduced you to Himani. Good. So Himani, all the best. चलो अपने presentation चालू रखते हैं. Sure. Okay. Yep. तो दोस्तों अगर मेरे साथ कांटेक्ट में रहना है तो मेरा फेसबुक है डॉक्टर जितेंद्र अडिया, मेरी वेबसाइट है dradiya.com और मेरा ईमेल आईडी है। आप अगर मेरे सेवाएं चाहते हैं तो आप ये मेरी वेबसाइट इजी टू रिमेम्बर है dradiya.com, ये जिसमें है। फेसबुक पे जुड़ेंगे तो वहां जाके आप मेरा फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। कल मेरा एक स्टूडेंट, जैसे हिमानी मेरी स्टूडेंट है, कल मेरा एक शायद आपने उसका नाम सुना होगा, वो मेलबोर्न आया था 2-3 साल पहले प्रोग्राम करने के लिए। तो अभी हम दोनों ने मिलकर एक मिशन करके स्टार्ट किया है। तो कल एक प्रोग्राम 10 से 12 बजे तक आप अगर करके भेजेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप ये प्रोग्राम भी कर सकते हैं। हेल्थ और वेल्थ के ऊपर ये प्रोग्राम इज ऑल्सो वेरी गुड स्पीकर। जैसे हिमानी मेरी एक अच्छी स्टूडेंट है, वैसे जैसे भी मेरा अच्छा स्टूडेंट है। तो कल जरूर जुड़िए, कल सुबह में, यानी होंगे कुछ 2 बजे दोपहर को। एनीवे, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन थी। अब मेरी किताब के बारे में लोग पूछते हैं, तो मेरी 2 बहुत फेमस हुई जो मिलियन कॉपी से ज्यादा बिकी, प्रेरणा करना एंड विजुअलाइजेशन, तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोनों किताब गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। वैसे प्रेरणा करना तो 8 लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो अमेज़न के ऊपर। चलिए कुछ प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल बाकी है दोस्तों। अपने हाथ की चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करेंगे कैसे?
माइंड पावर। मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ और फिर आप करेंगे। देखिए, मैं सामने हाथ रख के आंखें बंद करके विजुलाइज करता हूँ कि मेरे दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं। राइट हैंड नॉर्थ पोल है, लेफ्ट हैंड साउथ पोल है। विजुलाइज करने से मेरे हाथ में रियली मैग्नेटिक पावर आ जाएगा और ये मैग्नेटिक पावर से मेरे हाथ एक दूसरे से करीब होते जाएंगे। ये मैग्नेटिक पावर से दोनों हाथ एक दूसरे से करीब होते जाएंगे और करीब होते जाएंगे और करीब होते जाएंगे। देखिए, आपको करना है, करिए जरा। सामने हाथ रखिए, 6 इंच की दूरी पे रखिए, आंखें बंद करिए और कल्पना करें, विजुलाइज करें कि आपके दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं। राइट हैंड इज नॉर्थ पोल एंड लेफ्ट हैंड इज साउथ पोल। विजुलाइज करते जाइए और देखिए आपके हाथ के बीच में जबरदस्त आकर्षण पैदा हो रहा है। विजुलाइज करते जाइए, आपके हाथ के बीच में आकर्षण पैदा हो रहा है और दोनों हाथ एक दूसरे से होते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं। देखा दोस्तों, 90% लोगों को हुआ होगा, 10% को अगर नहीं हुआ है तो आराम से करना है, हो जाएगा। बिल्कुल प्रयोग भी करना है, विजुलाइज करना है कि दोनों हाथ नॉर्थ पोल हो गए हैं, यानी उत्तर ध्रुव बन चुका है, तो दूर दूर होता जाएगा, विकर्षण होता जाएगा। यानी यू कैन रियली विजुलाइजेशन से होता है या नेचुरली होता है। तो ये दोनों चीज आप फिर से करना है। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। मेरा अभी राजकोट में प्रोग्राम था हॉस्पिटल में, वहाँ एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उनको मैंने चमत्कार दिखाया, उनको 30 सेकंड में पत्थर बना दिया माइंड पावर से। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद ऑडियो नहीं आएगा, चिंता मत करिए, बहुत छोटा सा क्लिप है। देखिए दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिकल था। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत मजा आया। मेरे साथ जुड़े रहिए, गूगल फॉर्म जरूर भरिए और राजपूत समाज और जितने भी समाज ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। जीतू भाई, जिगर सिंह जाडेजा, वाघेला साहब और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से शुक्रिया। नाउ यू कैन टेक ओवर जीतू भाई। Yeah, sure. Thank you, sir. I would just like wrap it up. There is a lot of team efforts. हमारा घना बधा लोगों भाइयों રાજપૂત એસોસિએશન ના ભાઈઓએ બહુ બધી મહેનત કરી and we are glad કે સર તમે આવ્યા and that for this noble cause કે COVID-19 and we can help the nations in paying it back. So thank you again. We were so grateful that we had to have you here. Happy to have you here. You are happy to have you on board. And a really informative session side. આજનો જે સમય છે એમાં being positive around it and face the challenges of life and the economical challenges we are facing at this point in time. It's really, I would say, it was a grateful session that we had, and definitely we're having a lot of comments. They are putting in live, so we would definitely schedule something. Next time we see you in person, Himani and you, sir, both together. Australia આવો અને we will have your session in live so that we can do a lot of your practical in real time. Practical સામે મજા આવે છે, જુદી જાતી. Definitely. And this, let's say if there is any question. Yeah, if there is, I wanted to open the platform. If there is any questions, please put it in the comment. And હું સાહેબને on your behalf, I will just do it. Say it, સાહેબ.
while the questions are coming, sir, actually, I would like to thank all the organization who has helped us, all different organizations, which I said, and special thanks to you, to Himani, Dr. Jigarsi Jadeja, and Yashpalji Waghela, all of them. I'm just looking at comments if you have any questions. લોકોની બહુ સરસ સરસ કમેન્ટ્સ આવી રહી છે. Yeah, મને it's really, શું છે? નહીં, મેં ફેસબુક આપણે ઓપન કર્યું છે એટલે ઘણા બધા એવું કહી રહ્યા છે કે ખૂબ ઉપયોગી અને સાપરાંત સમયનો લોકો. Yeah, અચ્છા, જયેન્દ્રસિંહ જાડેજા, બજરંગ. yeah. Sir, there is one question for you by Mr. Raj Gohil. How to really identify subconscious mind? There is no need of identifying. It is an invisible thing. How can you identify invisible thing? It's like a Bhagwan. Bhagwan ne koi joya nahi joya. You have to believe it, you know. We can see the effect of Bhagwan, but we cannot see the Bhagwan sadaya to see nahi sakta. So એના જેવું છે. It's an invisible thing. It's a point of energy. Energy ને કેવી રીતે જોઈ? Actually, yeah. There was one comment. Well, Mr. Yeah, how do I become a trainer? How you become a trainer? How do I become a trainer? Yes. Yeah, you can come for my trainer training program. In fact, now I am planning a online trainer training program. કારણ કે હવે તો 6 મહિના સુધી આ બધા પ્રોગ્રામો બંધ રહેશે અમારા કોરોના કારણે. અમારી આ મે મહિનામાં બેચ હતી હમણાં 22 તારીખથી. ઘણા બધા લોકોએ રજીસ્ટર બી કરી દીધા છે. કોરોનાથી અટકી ગઈ. You can directly send email git@gmail.com અથવા એનો નંબર મોકલી દે મને તો થઈ શકશે. તમે મને મોકલી દેજો. I will guide you personally how can you become trainer. Even Himani can say that he has done my trainer program. Yeah. Senior student above. No, definitely we are proud that she representing the whole community and આટલું સરસ કરે છે. Very good speaker. તમે જોશો ને તમે ખુશ થઈ જશો. આખું ઓસ્ટ્રેલિયા માટે લેશો અમે. Yeah, I'm already impressed actually. She just briefed us very quickly. મેં તમને સરપ્રાઈઝ આપી. સવારે નહોતું કીધું, હમણાં જ કીધું તમને. Yeah. And in fact, શિક્ષકો માટે પણ સરપ્રાઈઝ હતી. Can we listen to the meditation music? Okay. અમુક ક્વેશ્ચન સાહેબ એવા આવે છે કે can we listen to the meditation music while meditating? હા, ઘણા બધા મેડિટેશન મ્યુઝિક ઓનલાઈન YouTube પર ને ખૂબ બધા અવેલેબલ છે. તમે 2-5 જોઈ લો, એમાંથી કોઈ એક ડાઉનલોડ કરીને યુઝ કરો. બહુ બધા તમને ઓપ્શન મળશે અત્યારે. માઇન્ડફુલનેસ મેડિટેશન કરીને બહુ સરસ તમે નાખશો ને બધા મ્યુઝિક મળી જશે તમને. અત્યારે તો આપણી પાસે ઓપ્શનમાં છૂટો જ નથી એમ. પેલા અમે જયારે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે આવા કોઈ મ્યુઝિક હતા જ નહીં. આપણે ક્રિએટ કરવા આપણે તો બધું સામે છે. ગૂગલ ખોલો એટલે સામે. એ વખતે અમે લોકો સર ને અમે ભેગા થઈ અને મ્યુઝિશિયન પાસે જઈને ક્રિએટ કરાવતા હતા સ્પેશિયલ મ્યુઝિક. હા, અમે મ્યુઝિશિયન પાસે ક્રિએટ એક જમાનામાં. ત્યારે આ બધું નહોતું, હવે આ બધું આવે. Oh, everything is at your fingertips. Yes, correct. Good. Okay. I think that's pretty much it from YouTube as well. અમુક લોકો એવું કહે છે કે sir, we have been trying this અને સવારે we just letting our subconscious mind know એટલે સવારનો અલાર્મ મૂકી દઈએ છે તો એ સવારે ટાઈમે ઉઠાડી જ દે છે. એટલે ત્યાંની ટેકનિક અમે શીખવીએ છીએ અમારા પ્રોગ્રામમાં. એમાં બી શીખવે છે. છે ને મેન્ટલ અલાર્મ ટેકનિક છે. રાઈટ. કરેક્ટ. આ બીજું કે અમારા હું છે ને એક લાઈફ ગ્લોબલ સાથે જોડાયેલો છું. સંસ્થા રાજકોટની છે, તમે કદાચ જાણતા હશો. એનો હું બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છું આખા વર્લ્ડનો. તો એકચ્યુઅલી ઓક્ટોબરમાં પ્લાન કરેલો ગોલ્ડ કોસ્ટ ઉપર બ્રિસ્બેનમાં જવાના હતા. દીપ્તિબેન અત્યારે ઓનલાઈન જોતા બી હશે. તો મારે આવવાનું હતું પણ આ બધું કોરોનાના કારણે ડિસ્ટર્બ થઈ ગયો. પણ આવીશું ત્યારે એમનું બી મારે ઘણું બધું કામ છે. હું આખા વર્લ્ડમાં એના કામ માટે કરતો હોઉં છું. અને એ લોકો કરે છે. સરસ પ્રોગ્રામ છે એમનો. વિડીયો રાજકોટમાં જે રાજકોટના લોકો હશે ને બધા અને બચ્ચન ફેમિલી અમારી સાથે જોડાયેલું છે. બધું એમના Oh, very nice. Okay. I think બીજા અમુક questions we can do in a follow up, sir. અને તમારું પ્રેઝન્ટેશનની જે કીટ હશે એ પણ હશે. એક બેઝ ક્વેશ્ચન છે કે how do we help students reduce the stress in COVID-19 situations? but એમાં જે આપણે કીધું આપના જે 9 steps છે, I think that would be really helpful. એટલે બધાને મોકલી દઈશ 9 સ્ટેપ. આપણે
Okay. એટલે રેડી રેકનર થઈ જશે. Yeah, definitely. બ્રિસ્બેન વાળા Or- વેલકમ કર્યું. કોઈ બ્રિસ્બેન વાળાનો મેસેજ છે વેલકમ ટુ બ્રિસ્બેન કરીને. Well, yeah, welcome to Brisbane, sir. That's what they say. બ્રિસ્બેન તમે હો તો તમે મેસેજ લખો, તમે લાઈન પર છો. બ્રિસ્બેન મેકવાન અમારા ત્યાંના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, રજીસ્ટર કરાવી છે અમારી સંસ્થા, લાઈવ સંસ્થા. તો એમને મેં કહ્યું તો હમણાં પ્રોગ્રામ પહેલા જ ફોન કરીને કહી હતી. Correct. They Correct. planning in Brisbane વાળા. Okay. Well, actually, the Rajput Association of Australia is across the Australia. It covers all the different states and cities. એટલે આપ આવો તો હા. કેટલા લોકો છે રાજપૂતના ત્યાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં? તમે કહ્યું 1500 ફેમિલી ને કેટલા? There are a lot of families, but આપણું જે reach out to all with all different organizations, that was around 1,500 to 2,000 people. So, ઓકે yeah. ઓકે So Rajputna family is around 250 families. ઓકે ગુડ ગુડ. સરસ. તો ચાલો હવે ના હોય તો Yeah. So we'll wrap it up. Thank you once again, and let's થેન્ક યુ. let's all be thankful to you, and we'll definitely try and utilize and command our subconscious mind to achieve what we need to achieve in the life. We're really thankful to you. Thank you, sir, and thank you, Prakshico, and all the organizations. In Australia, right? Yes, we definitely would love to have you. I mean, બહુ વહેલા આવો. Thank you. All right, thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.